So hello everyone, I think we are good to start. So shall we start? Yes, sir. Okay, so in the last session we have seen about Sun and Fano coding. So I think things are clear in the Sun and Fano coding. If anybody has any doubt, they can tell me, or we will move to Huffman coding. So we have seen some 7 to 8 problems in the Sun and Fano coding, and you are also able to solve those problems. So should we move to Huffman coding? Okay, so no doubt is there. So we are moving to Huffman coding. So this is the also part of source coding. So I'll write the heading here, Huffman coding. So in the say for Huffman coding also, I will write 4 procedure how to do it, and based on that procedure, we are going to solve the problem on the Huffman coding. So please follow those procedure which I'm going to write, and if you can write it somewhere, please write it because it will help you. So first will be we will be always write the probabilities. So first will be write the probabilities, write the probabilities, probabilities in descending order. So same thing which we are doing in the Southern Fanon, we have to repeat here also. So first of all, what we are going to do, we will write all those probabilities in the descending order. Then what we will do, we will add the last 2 column of those probabilities. So the second step will be add last 2 probabilities, add last 2 probabilities, and and write in a way such that some of the probabilities it is in descending order. So don't get confused. When we will solve the problem, we will see what we have to do. And for this, what we have to do in the second step, we have to add the last 2 column of the probabilities. Then we have to take the sum of those 2 columns, and we have to rearrange in a descending order. So this thing we have to do in the second step. So when we will solve after this fourth step, when we will solve the problem, I will show you how to do it. And then third step will be repeat the process, repeat the process until the sum become ones, until the sum becomes 1. So first step will be we will write the probabilities which will be given to us in the descending order. In the second step, we will from those column of those descending order, in the last 2 column, we will add those probabilities, and we will rearrange in such a way that the sum of those probabilities will come in the descending order only. And third step will be we will repeat the process until the sum becomes 1. So we will do up to the sum is becoming 1. And the last fourth step will be right here, the fourth step. The fourth step will be follow the arrow, follow the arrow, follow the arrow, and write the code word from LSB to MSB. From left side to, we will follow the arrow which we are making, and after that we will write the code word from left side to the medium side. So I'll give you one example. I'll show you one problem so that things will be more clear to you. So these are the 4 steps which we are going to follow in this Huffman coding. So and it is also very simple, same as Sanan Fano coding. We just needed to follow some steps, and after those steps you will see that how easily we are solving the problem in the Huffman coding. So let's suppose one problem is there. The probabilities are given as, so please follow what I'm going, whatever I'm writing here, please follow that. Probabilities are 0.25, 0.125, 0.125,
and 0.50. So this is the question which we are going to solve. And in this problem, as you can see, the four probabilities are given as 0.25, 0.125, 125, and 50. So how the problem is coming into the paper? So they are asking you to write the code word using Huffman coding, and they are asking you to calculate the entropy, code length, and efficiency. So four problem will be there based on this question. So they will ask you like this: based on this probability using Huffman coding, give the code word, assign the code word to these probabilities, and with that help kindly find entropy, code length, and efficiency. So is this a problem is clear to you? So first of all, I'll write here the probabilities. So whatever probabilities which we are getting, so I'll write here probabilities will be in the descending order. So I think the network issue is there or what? Can you hear me comfortably? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में, फिर वापस वॉइस सही भी हो रही है, तो अच्छा, नेटवर्क इशू है सर छोटा मोटा। अभी ठीक है? अभी आवाज आ रही है? बीच बीच में ब्रेक हो रही है, बीच बीच में वापस सही हो रही है। अच्छा ठीक है, कोशिश करिए आप लोग, अगर दिक्कत होगा तो बताना बीच में आप लोग. So I'll write those probabilities in the descending order. So first of all, I'll write here 0.50. After that 0.25, then 0.125, then 0.125. So is this clear how I have written? I have written in like in the descending order. So now my voice is clear. Can you hear it? So are you able to hear it? Yes, sir. Okay, so now in the next step, what I've told you, add last two columns. So what I'm going to do, I am adding these two columns. So if I'll add these two, what I'll get 0.25. So then I'll rearrange, so 0.25. So I'll put this arrow here and I'll write here 0.25, and this will be same 0.50. This it will be same, and this arrow, this will come beside this will come beside this. So this 0.25 will come. So is this step clear, or I'll try, if you have any doubt, I'll do it one more time. I have added these two column. So what it has become 0.25. So I have substituted upside. So सबसे पहले 0.50 आएगा, उसको ऐसे ही रहने दिया मैंने. फिर ये 0.25 को ऊपर कर दिया और इसको नीचे कर दिया. ये स्टेप क्लियर है कैसे किया मैंने? इसको ऊपर जो नया 0.25 आया इसको ऐसा हाँ, जो भी नया 0.25 आया उसको उसको अभी पहले मेरी बात सुन लो फिर बोलना बीच में. जो भी नया 0.25 आया है उसको ऐड कर देंगे और उसको ऊपर लिख देंगे एरो बना के. तो ये ऊपर भी ऊपर भी ऐसे लिखना होगा ना, या ऊपर वाले को एक नीचे ले आए. डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाए, या कैसे भी लिख सकते हैं. अभी मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे करो, समझ में नहीं आया तो फिर पूछना बीच में, अभी देखते रहो. फिर यहाँ पे मैंने 0 असाइन कर दिया और इधर 1, जैसे लास्ट स्टेप में कर रहे थे हम लोग कि 0 अपर केस में 1 लोअर केस में. नाउ सेम थिंग वी विल डू इन द नेक्स्ट स्टेप. We will add these two. So what it will become 0.50. So we'll put 0.50 here. We'll put 0.50 here, and we will put this 0.50 will come this side. So now also we'll put 0 here, 1 here. So ये फिर ये दोनों फिर अब कब तक करते रहना जब तक इनका सम 1 ना हो. अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा. तो अगर इन दोनों को जोड़ दिए तो इट विल बिकम 1. अभी बताइए इस स्टेप में अभी क्या समझ में नहीं आया इसमें? अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से बताऊंगा. अब समझ में क्या नहीं आया ये बताओ आप. किधर समझ में नहीं आया, कहाँ दिक्कत है? फिर यहाँ भी 0 लगा देंगे और 1 लगा देंगे. अभी मैं बताऊंगा कोडवर्ड कैसे लिखना है. तो ये स्टेप में बताइए, अगर आपको दिक्कत है तो मैं फिर से बताऊंगा. ये समझ में आया या वापस वापस बताऊं? सर एक बार वापस बताओ ना सर इसको. एक बार वापस बताता हूँ, ध्यान से आप लोग देखेंगे. ये सब वो ऊपर नीचे में ही है प्रॉब्लम.
So see, first of all, I'll write in the descending order. So I'll write here 0.50. People are waiting in the lobbies. Let me accept them. So first step is I'm writing in the descending order. So I've written here 0.50. So I'll write here 0.25, and after that 0.125 and 0.125. So please follow the step of how I'm doing. So in the next step, what I've told you, we have to add last two column. So these two last column we have to add. So what we will do, we have to add this. So what it will become 0.25. So it will become 0.25. So what I will do here, I'll put this arrow here, 0.25, and I will assign 0 here and 1 here. After this 0.25 will come here, 0.25, and now this will be same. This is acting as same. So this is the first step. Now what I have to do, I'll add these two column, these two last. Now अब 3 बचा हमारे पास, तो ये दोनों लास्ट हो गए, तो इनको ऐड कर देंगे एक साथ. तो इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.50. तो इस 0.50 को कहाँ लिख दूंगा मैं, यहाँ पे 0.50, और यहाँ लगा दिया 0, यहाँ 1. फिर इस 0.50 को नीचे रहने दूंगा मैं. I'll put here 0.50. Let me add participants waiting. So now one more, what I have told, जब तक करना है जब तक 1 ना हो जाए. तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1. So I'll add these two also. So what it has become? It has become 1. So I'll put 0 here and 1 here. अभी बताइए कहाँ दिक्कत हो रहा है. अगर नहीं समझ में आया तो फिर बताऊंगा. आप बताओ किस स्टेप में दिक्कत है. Everyone please see and tell me in which step you are finding any difficulty. Clear? So don't get hesitate नहीं होना है अपने को. जहां भी आपको दिक्कत हो रहा है बताओ. Clear? So based on this arrow only we are assigning the code word. So see how we will assign the code word. So for code word I'll show you how we are going to assign the code word. So सबसे पहले 0.50 का code word लिखेंगे हम लोग. देखिए 1 second. Okay, so see, just follow the arrow. So 0.50 को देखिए, यहाँ से देखते जाइए, ये देखते जाइए. एरो को फाइंड करना है अपने को. एरो देखिए, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आएगा. हमेशा 0 और 1 असाइन कर रहे हैं हम लोग. तो अगर आप देखते जाइएगा 0.50 इधर से देखिए, ये एरो देखिए, यहाँ पे आ रहा है 1. यहाँ ये एरो ऐसे आ रहा है, नीचे आ गया 1 आ गया, तो यहाँ लिख दिया 1. फिर देखिए ये एरो ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये 0, यहाँ पे आ गया 0. So this is code for 0.50, 0 and 1. Is this clear? और एक बार और बताऊं मैं कैसे लिखा. सर ये वापस बस सर वो स्क्रीन लैग. हाँ नहीं सर कुछ. क्या नहीं हुआ सर वो स्क्रीन लैग हो गई तो कुछ दिखा नहीं था. मतलब क्या आपने 0 कहाँ से लिया 1 कहाँ से लिया, वो कंफ्यूजन हो गया उसमें. सर वापस बताओ ये वाला. So see this arrow. See we have to see only this arrow only. So see this arrow how it is going. So यहाँ एरो आ रहा है यहाँ पे. So यहाँ से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे 1 असाइन किया हुआ हमने पहले. क्या लिख दूंगा 1. 0.50 पे लिख रहा हूँ. फिर ये एरो देखिए ये कैसे जा रहा है यहाँ से. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर यहाँ से देखेंगे तो यह क्या आ रहा है 0. ये 0 हो गया 1 0. हमेशा LSB to MSB लिखेंगे. पहले LSB फिर MSB. मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को करता हूँ एरो अच्छे से बना के, ताकि आपको क्लियर रहेगा. अभी आपको डाउट लग रहा होगा एरो अच्छे से नहीं बना हुआ है. सो आई विल ट्राई टू डू वन मोर टाइम. सो प्लीज बी विथ मी. So see, I'll first of all, if somebody has not, किसी को दिक्कत हुआ है पहले, तो अभी एक बार और देख लीजिए. पहले मैं 0.50 यहाँ लिख दिया. Then I'll write here 0.25, then 0.125, then 0.125. So in the next step, what I will do, I will add these last two columns. So if I'll add these last two column, what I will get 0.25. So I'll put this 0.25 here. So 0.25. और यहाँ का क्या कर दिया मैंने, 0 और 1 लगा दिया. ये हो गया. और इसको ये वाले जो ये इस चीज को यहाँ लिख दिया मैंने 0.25. It will be same 0.50. Now in the next step, what I'm going to do, I'll add these two columns. So I'll write here 0
and I'll write here 1. So what this 0.50 will come here, 0.50, and this will come here. This will come here. So this is the second step. The last step, what I'm going to do, I'll add these two. I'll put here 0 and I'll put here 1. 0 to the uppercase, 1 to the lower case. So what it will become 1. तो I think ये चीजें सबको क्लियर है. अब हमको कोड लिखना है. तो देखो कोड कैसे लिखते हैं हम. कोड कैसे लिख रहे हैं. सबसे पहले 0.50 का कोड लिखना है. इसका चारों का अलग अलग कोड लिखना है. सबसे पहले इसको देखो, एरो को बस देखते जाओ आप. एरो को देखिए, एरो यहाँ पे एरो आया है. यहाँ पे क्या है 1. यहाँ क्या है 1. यहाँ क्या लिख दिया मैंने 1. ये 1 आ गया. सिर्फ एरो को देखिएगा और कुछ नहीं देखना है अपने को. फिर इन द सेकंड स्टेप 0.25 को देखो. 1 सेकंड, आई हैव टू रिमूव दिस. ओके, इन द सेकंड स्टेप आई विल राइट हियर 0. यहाँ लिख दिया 1. सेकंड स्टेप में क्या लिखा 0.25. इसमें भी एरो को देखिए बस आप. अगर आप देखेंगे ये इस एरो को देखते जाइए. सब अगर इधर देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है 1. यहाँ क्या लिख दिया हमने 1. फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. फिर क्या आया 1. यहाँ क्या लिख दिया 1. दो 1. फिर इस 0.125 को देखिए, 0.125. अगर सबसे पहले देखेंगे इसी एरो को देखते जाना है बस. ये 0.125. 0.125 को देखिए. सबसे पहले क्या आया 0. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप 1. फिर लास्ट 0.125. एक और 0 यहाँ पे है तो ये एक और 0. लास्ट 0.125. सबसे पहले क्या आया 1. यहाँ क्या लिख दिया 1. फिर आगे जाता ये इस एरो को देखते जाइए. यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये 1. फिर ये यहाँ पे 1, ये 3 1. अभी बताइए कहाँ दिक्कत आ रहा है. किस स्टेप में दिक्कत आ रहा है फिर से बताइए मुझे, फिर मैं बताऊंगा आपको. सर स्क्रीन लैग कर रही है. सो स्क्रीन इज नॉट विजिबल. So I'll connect one more time. I've connected one more time. चलो आप स्टार्ट करो. मैं बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा. एक बार लिख दिया मैंने यहाँ पे. अभी आप बताते जाइए अगला स्टेप. फिर मैं करते जाऊंगा ताकि क्लियरिटी रहेगा. सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दिया है. इसमें किसी को डाउट है? एक एक स्टेप प्लीज मुझे बताते जाइए आप लोग अपनी तरफ से. इन दोनों को ऐड किया, किसी को डाउट है इसमें क्या किया है? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? इन दोनों को ऐड करना. ये क्लियर है आपको? लास्ट 2 कॉलम को ऐड करना है हमको. Is this clear to you? Okay, so I am adding these two. और उसके अगला स्टेप क्या होगा? यहाँ 0 असाइन कर देंगे और यहाँ 1. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. सो ये अब ये 0.125 अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 0.25. ये 0.25 कहाँ चला गया? यहाँ पे आ गया 0.25. फिर ये अगर देखेंगे ये 0.25 नीचे आ जाएगा 0.25. आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा. फिर ये 0.50 ये सेम ही रहा, ये सेम ही रहा. ये स्टेप में किसी को दिक्कत है? इस स्टेप में बताइए किसी को दिक्कत है? यहां तक क्लियर है चीजें? एक एक स्टेप आगे बात करेंगे, बढ़ते जाएंगे हम लोग. यहाँ तक क्लियर है कैसे लिखा है? ये फर्स्ट स्टेप था अपना. ओके, नाउ इन द सेकंड स्टेप व्हाट आई एम गोइंग टू डू. सी इन द सेकंड स्टेप इन दोनों को ऐड करेंगे. ये इन दोनों को ऐड करेंगे. इन दोनों को ऐड किए तो यहाँ पे क्या असाइन कर दिए 0. यहाँ पे क्या असाइन किया हमने 1. ये कितना हो गया 0.50. तो ये 0.50 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 0.50. और ये 0.50 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 0.50 नीचे आ गया. ये स्टेप में दिक्कत है. ये सेकंड स्टेप था अपना. ये समझ में आया अपने को?
यस सर। आगे बढ़ते हैं, फिर ये लास्ट स्टेप है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किए तो फिर यहाँ पे 0 डाल दिया और यहाँ पे 1 डाल दिया, ये हो गया 1। ये हो गया आपका हफमैन कोडिंग। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस कोड लिखना है। एरो के हिसाब से कोड लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये कैसे किया हमने, ये समझ में आ गया आपको। फिर अभी कोड लिखना भी आ जाएगा। ये इतना क्लियर है? प्लीज गिव मी द ऑनेस्ट फीडबैक, इज इट क्लियर? अगर ये आपको आ गया एरो बनाना तो फिर कोडिंग लिखना कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। या ओके ओके। अगर Yes, sir, इतना clear. इतना क्लियर है तो अब देखो कैसे कोड लिखते हैं। बस एरो को फॉलो करना है अपने को। देखो अब सबसे पहले यहाँ पे आप 0.50 कर दो, 0.50। अब देखो 0.50, इसको फॉलो करो, इसके एरो को फॉलो करो। अगर यहाँ से देखते जाओ आप, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे सिर्फ 1 आया है ना बीच में। इस एरो के बीच में सिर्फ 1 आया है क्या? और कुछ आया है कोड? आप देखो, खुद ही बताओ आप लोग, और कुछ आया है 1 के अलावा? ये देखो आप, केवल 1 ही तो आया है, बीच में और कुछ आया है? बीच में कोई और कोड दिख रहा है आपको? कोई भी डाउट है नहीं, प्लीज नहीं। बता। हाँ तो यहाँ 1 लिख दूं मैं, बिना किसी हेजिटेशन के 1 लिख दूं? 1 लिखूं मैं यहाँ पे? किसको 1 समझ में नहीं आया प्लीज बताइए, ताकि आपका डाउट क्लियर कर सकूं मैं। सर कोड डायरेक्शन इज लेफ्ट टू मिडिल। हाँ तो लेफ्ट टू मिडिल जब देखेंगे, जब 2 कोड आएगा ना, सिर्फ अगर 0.50 में आप देखोगे तो एक ही कोड तो आ रहा है, सिर्फ 1 ही तो आ रहा है। इन बिटवीन आपको कोई और कोड मिला है क्या? आप खुद ही देखो, इसके बीच में कोई और कोड है? यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे तो कोई और कोड आपको दिख रहा है? केवल 1 ही तो दिख रहा है, ये 1। और इसके अलावा क्या दिख रहा है आपको? बताइए। ओनली 1। सो आई शुड राइट हियर 1। सो ये हो गया आपका 1। सो अब देखो, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम 0.25 का कोड देखेंगे। 0.25 का, इसका इस चीज का कोड देखेंगे। तो देखिए इस चीज का कोड, यहाँ से एरो को देखते जाइए, एरो को देखिए, तो यहाँ पे क्या मिला हमको? 1। ये 1 दिखा अपने को, ये 1। बीच में यही 1 तो आया है, ये 1। तो यहाँ क्या लिख दिया? 1। फिर देखो यहाँ से उठा, ये एरो यहाँ गया, ये गया, ये गया, ये गया, फिर यहाँ पे क्या मिला? 0। ये क्या लिख दिया मैंने? 0 1 लेफ्ट साइड में। ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट साइड टू एमएसबी। सेकंड वाला किसको समझ में नहीं आया आप प्लीज बताओ, ताकि मैं फिर से बता सकूं कैसे 0 1 लिखा मैंने सेकंड वाला केस में। सेकंड वाला बताइए। सर 10 आएगा। सर 10 आएगा ना, 01 कैसे आएगा? 0 1 आएगा। सुमन देखो, यहाँ से स्टार्ट करो आप। ये इस एरो को देखना है हमको। ये पहले एरो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या है? 1 ही है। 1 है ना यहाँ पे? सुमन कैन यू सी इट? सर तो ये 1 लिख दिया मैंने, हाँ सर। ये 1 लिख दिया। फिर ये देखो आप, ये एरो जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या आया? 0 आया। ये एरो का मार्क इधर है ना, ये 0 आया ना, तो बगल में इसके 0 लिख दिया। तो जैसे लिख रहा हूं मैं, ऐसे लिखना है। पढ़ेंगे इसको 0 1, लिखा हमने 1 0 है, पढ़ेंगे कैसे? 0 1 एलएसबी टू एमएसबी। समझ ओके गए? सर। अगर कोई डाउट है तो बताओ। अभी आप समझिए कैसे लिखा मैंने इसको। हाँ सर, समझ गई। अब देखो 0.125, हाँ समझ गई सर। 0.125 को कैसे लिखते हैं? 0.125। अब इनको देखिए, सबसे पहला क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये 0 दिख रहा है अपने को, ये 0 दिखा। यहाँ 0 लिख दूं मैं बिना किसी डाउट के? यहाँ 0 लिख दूं क्योंकि सबसे पहला ही देखिए 0.125 पे 0 दिख रहा है ना अपने को, तो यहाँ 0 लिख दिया मैंने। फिर देखिए यहाँ पे आया, इधर आया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, फिर ये देखो, एक और 0 दिख रहा है आपको सामने 0.25 के, ये भी 0 दिख रहा है, ये 0। फिर यहाँ क्या कर दिया? एक और 0 लिख दिया। फिर देखो, फिर एक यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, एक और 0 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक और 0। यहाँ क्या लिख दिया? एक और 0। एक सेकंड रुकिए बस आप, मम्मी अभी फोन कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया? 3 0। आप देखिए कैसे लिखा मैंने, एक बार और मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले 0.125 को देखो आप, 0.125 पे सबसे पहले ये 0 दिखा अपने को, स्टार्ट करते ये 0 दिखा है, तो यह क्या लिख दिया मैंने? 1 0। फिर यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये एक और 0 रास्ते में मिला हमको, एक और 0 लिख दिया। फिर ये देखिए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, ये गए, ये गए, एक और 0 रास्ते मिला, तो ये एक और 0 लिख दिया।
ये थर्ड 0.125 के लिए। एक बार फोर्थ भी देख लो, फिर आप बताओ कहाँ डाउट हो रहा है। फोर्थ देखो, फोर्थ में सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या है, ये 1 है, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने 1। फिर ये देखो यहाँ से गए, यहाँ से गए, ये गए, ये सिर्फ इस एरो को फाइंड, कुछ नहीं करना है अपने को। अगर हम एरो को देखते जाएंगे तो हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये 1 दिखा हमारे लास्ट वाले 0.125 में, ये 1 यहाँ से स्टार्ट किया हम लोगों ने, ये 1 दिखा, ये 1 दिख रहा है अपने को। आर यू गेटिंग इट, द थर्ड एंड फोर्थ 0.125? हाउ आई रिटन दिस 1 एंड हाउ आई रिटन दिस 0, ये बताइए आप पहले। ये कैसे लिखा, आपको समझ में आया? स्टार्टिंग से टॉप पे नहीं जाना, हमेशा अपने को एरो को देखना है, कहां से एरो लगाया है। अगर एरो हम समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो ये 1 दिखा, फिर ये एरो को देखिए, एरो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ये इधर आया, ये 0, यहाँ लिख दिया एक और 0। फिर ये देखो, फिर ये एरो ऐसे आया, ऐसे आया, यहाँ पे आया एक और 0, ये 0, क्या होगा 0 0 1। सुमन इज टेलिंग क्लियर। अभी भी किसी को दिक्कत है तो आप बताओ, मैं एक बार और बताऊंगा, डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से मैं एरो बना के बताऊंगा। देखो ये आंसर होगा आपका फाइनली। फिर यहाँ से एन के हम निकाल लेंगे, तो एन के कितना हो जाएगा 1 2 3 3। फिर हमने जाना ही है कैसे निकालना है, कोड वर्ड, कोड लेंथ, एफिशिएंसी, ये हमको पता ही है। सर इफ यू ऑफ योर कैमरा देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ स्क्रीन लैगिंग। ओके, सो शुड आई ऑफ दैट कैमरा? ओके, आई एम ऑफिंग इट। So I had off my camera. So now is it clear to you? मैं एक बार इस सवाल को फिर से करूं या दूसरे सवाल को करूं, आपको अगर डाउट हो तो प्लीज टेल मी इन विच स्टेप यू आर फेसिंग डिफिकल्टी। करके देख लेते हैं। समझ में तो आ चुका है भाई। समझ में आ गया है ना? एक बार आप फिर से अपने कॉपी में एक बार आप कॉपी पेन लीजिए और एरो बना के देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। आप मेरे साथ साथ फिर से इस प्रॉब्लम को करिए। ऐसा नहीं है जब तक समझ में नहीं आएगा, जैसे भी सनन फादन कोडिंग समझ में जब तक नहीं आया तो आगे नहीं बढ़े, तो ये भी जब तक समझ नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए डाउट मत रखो, एक ही सवाल करेंगे, बाकी कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बार आप अपने कॉपी में लगाओ। आप प्लीज कॉपी पेन लो और इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो। देखो आप मेरे साथ साथ लगाओ, देखिए। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे 0 असाइन करेंगे, यहाँ पे 1 असाइन करेंगे। जब 0 और 1 असाइन कर लिए तो ये कहाँ जाएगा, एक स्टेप ऊपर आ जाएगा। तो ये कहाँ आ गया 0.25। फिर इस चीज को नीचे लेके आएंगे हम, यहाँ पे एरो बस ध्यान से बनाना है, इस चीज को नीचे लेके आएंगे, ये नीचे लेके आ गए, ये क्या हो गया 0.25 और ये सेम रहेगा, ये 0.50 सेम रहेगा। प्लीज अपने कॉपी में साथ साथ में करिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर क्या कर रहा है नेक्स्ट स्टेप में, फिर इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये यहाँ पे 0 असाइन कर देंगे, यहाँ पे 1 असाइन कर देंगे, विल असाइन 0 and 1 हियर। सो आफ्टर दैट वी विल पुट दिस अपसाइड, ये यहाँ पे आ जाएगा 0.50 और दिस विल कम डाउन, so this will come down side, so I will write here 0.50. In the next step we'll add these two, in the next step we'll add these two, so I'll put here 0, I'll put here 1 and it will become 1. ये शायद सबको क्लियर होगा। बस अगर हम एरो सही से बना लिए फिर दिक्कत ना होगा। तो अब देखिए आप कैसे लिखते हैं हम, अब कोड कैसे असाइन कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए कोड कैसे असाइन करता हूँ। सबसे पहले 0.50 को देखो, एरो को देखते जाओ, यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ, बीच में आपको सिर्फ 1 मिल रहा है। सिर्फ एरो को एरो को देखो और कुछ नहीं करना है। जहां से एरो जा रहा है बीच में देखो सिर्फ 1 मिला है अपने को और कोई कोड नहीं मिला है अपने को। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने 1। फिर देखो 0.25, we will see 0.25, so see just follow the arrow। ये देखिए ये सबसे पहले क्या मिला हमको 1 मिला, तो यहाँ क्या लिख दिया 1। फिर ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, so I am finding 0 here, so I'll write here 0। So now in the third step for 0.125, so see for 0.125 first of all I am getting 0, so I have written here 0। उसके बाद से यहाँ से देखिए फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे मिला हमको 0, फिर ये 0 लिखा हमने।
फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे मिला हमको 0, so आई एम फाइंडिंग हियर 0, so आई राइट हियर 0, 3 0. नाउ फॉर द लास्ट स्टेप 0.125 आई एम गेटिंग 1 हियर, so आई हैव रिटन 1. फिर यहाँ से ऊपर गए, इधर गए, ये मिला हमको 0, यहाँ डाल दिया 0. फिर इधर आए, नीचे आए, फिर ये एरो मिल गया, ये हो गया 0. सांप सीढ़ी का खेल आप लोगों ने खेला है, वही चीजें करना है बस हाफमैन कोडिंग में, और कुछ नहीं. सीढ़ी पकड़ के चढ़ना है अपने को. एरो क्या है? सीढ़ी है अपना. अभी बताइए किसको दिक्कत है इसमें, कैसे, किसको प्रॉब्लम हुआ, कैसे कोड लिखा मैंने. So I think this is clear to you and please try to find other thing. So आप इस, मैं अगली क्लास में आपसे पूछूंगा अभी कि एंट्रोपी, एफिशिएंसी और कोड लेंथ कितना निकला. So quickly I will give you one more problem. So इससे आपका डाउट नहीं रहेगा. So quickly we will solve one more problem. So that जो भी बचा कुचा डाउट है वो आपका खत्म हो जाएगा. So I think this problem is. So I'll write one more problem for you. So let's see. The question is 0.40, then 0.15. I'm already writing in the descending order. I hope everybody can do it. 0.15, 0.15. So अगर बीच में मीटिंग खत्म हो जाता है तो फिर से आप लोग मीटिंग में ज्वाइन कर लीजिएगा. वी विल मतलब एक बार और स्टार्ट कर देंगे, तो क्योंकि ये प्रॉब्लम खत्म होने के पहले. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे. इन दोनों को ऐड किया मैंने, यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 1. हाँ, कोमल एंट्रोपी, हाँ सही है आपका. एंट्रोपी और कोड लेंथ 1.75 आएगा, एफिशिएंसी 100%. तो सबसे पहले 0 1 इन दोनों को असाइन किया, और ये कहाँ पे आ गया 0.30. तो 0.30 देखो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, इधर 0.30. और ये 0.40 सेम रहेगा. फिर ये 0.15 नीचे आ जाएगा, एक 0.15, और ये थोड़ा एक और नीचे आ जाएगा 0.15. I hope this is clear to you. फिर in the next step what I'm going to do, I'll add these two. So if I'll add these two, I'll assign 0 here, I'll assign 1 here. So this will come this side, this will come this side 0.30, और this will come, एक नीचे आ जाएगा ये 0.30, और ये 0.40 सेम रहेगा 0.40. Now in the third step I'll add these two. So if I'll add these two, so what it will be, I'll put here 0 and 1. So where it will go, it will go here 0.60. So I'll write here 0. Let me write, I'm going there. 0.60, और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. ये कितना हो गया 0.40. So in the last step I'll add these two. I'll put here 0 and I'll put here 1, और ये क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा. तो ये कैसे लगा, समझ में आया आपको कैसे लिखा मैंने? ये इस प्रॉब्लम में दिक्कत है. So this सर is एक बार और रिपीट कर दो ना. एक बार और रिपीट कर दूं. एक बार में ध्यान नहीं लगा तो इस बार ध्यान रहना चाहिए. सो इस प्रॉब्लम को, और एक और प्रॉब्लम मैं लिख देता हूं अगर मीटिंग खत्म हो गया तो. कल इन दोनों प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे हम लोग. 0.35 लिख लीजिए आप लोग, 0.20, 0.20, 0.15 एंड 0.10. सेम चारों चीज आपको फाइंड करना है. ये आपका होमवर्क प्रॉब्लम है, और उसको मैं एक बार और डिस्कस कर देता हूँ. सो आई विल डिस्कस इट वन मोर टाइम. दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम, प्लीज राइट इट. सो आई ट्राई टू सॉल्व, वी विल डिस्कस इट इन द टुमारोज क्लास. अगर आप घर पे सॉल्व करेंगे आप, अब फिर आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी. सो सी व्हाट इज द क्वेश्चन देयर. सो आई राइट हियर 0.40, 0.15, 0.15, 0.15 and 0.15. So see, in the next step what I'm going to do, I will add these last two columns. So if I'll add these two, so it will be, I'll put here 0 and I'll put here 1. So ये कितना हो जाएगा 0.30. So I'll put here 0.30. डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने को हमेशा लिखना है. ये 0.40 सेम रहेगा, और ये 0.15 नीचे आ जाएगा, 0.15 नीचे,
and this 0.15 will also come downside. So I have assigned code 0 and 1. So now in the next step, I'll add last two columns. So I'll add these two. I'll put here 0 and I'll put here 1. Or this will become 0.30. So I'll write here 0.30. Or this will be 0.40. Or these 0.30 will come downside. So it will come downside. So now in the next step, I'll add these two. I'll put here 0. I'll put here 1. So it will become 0.60. So 0.60 will be here, or 0.40 will be here. Now in the last step, if you'll add, it will become 1. So I'll put here 0. I'll put here 1. And it is becoming already 1. अभी बताइए किसको दिक्कत है इसमें? Is any doubt? Anybody has any kind of doubt in this question? How I have done? Okay, so now your next task is assigned. Manoj is telling the code word. Manoj, बताओ. So your next task will be, in the next class we will discuss. अपने मन से सभी लोग इसका कोड वर्ड लिखेंगे एरो देख के, इसका और जो एक और प्रॉब्लम मैंने दिया उसका, बिना किसी का सहायता लिए हुए. गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, फिर से डिस्कस करेंगे हम लोग. यहाँ पे आपको अगले नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस द कोड वर्ड फॉर दिस एंड ट्राई टू. किरण ने बोला है 10000. let's see what Kiran has written. So Kiran has written, so 10000001010. So Kiran, I think Kiran is correct, I think. So she has done it, so it's good. तो अगली क्लास में आपको एंट्रोपी, कोड लेंथ, एफिशिएंसी फाइंड करना है इस प्रॉब्लम का, और कोड वर्ड भी, और सबको कोड असाइन करना है. किरण ने भी कर दिया है, आप भी करिएगा. मुझे पता नहीं है सही है कि गलत है, एक बार देखना पड़ेगा. खुद कल साथ में ही लगाएंगे और नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी करके लाइएगा. सो वी विल डिस्कस दिस टू प्रॉब्लम्स एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व 3 और मोर. मतलब जब तक क्वेश्चन करेंगे जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा. तो जो भी, और मैं इसलिए वीडियोस अपलोड करके आपके ग्रुप पे भी डाल देता हूँ कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप बाद में भी देख सकते हैं. तो okay, so we will try to meet in the next class. So solve these two problems, whatever your answer is coming. So ऐसा नहीं है कि सही आंसर ही चाहिए, अटेम्प्ट चाहिए अपने को. अगर हम अटेम्प्ट करेंगे तो आज नहीं तो कल सही होना ही है उसको. So this is all about today. अगर कल शायद क्लास ना हो, परसों होगी, तो अगर कल होगी तो मैं आपके सीआर को बता दूंगा. तो जब भी क्लास होगी मैं ये दोनों प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा और 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको. So I will tell tomorrow's schedule. I will tell to your CR. So thank you for today. We will meet in the tomorrow session.